Let us go to the capsule 3 on the basics. Certain ratios we are going to require for the purpose of valuation. I have given some of them which you have done in intermediate. So immediately after this, once we do it, I have put up some questions on valuation. If you see at the end of the basics of FM chapter, तो वहां पर आपको ये रेशोज और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी काम में आने वाला है, करेंगे 6-7 क्वेश्चन है और ये एग्जाम के क्वेश्चन है. Debt ratio, it basically tells you, first ratio that I'm taking up, the debt ratio. It tells you amount of debt as a percentage of total capital employed. See, आपका capital employed जो है ना, उसमें क्या रहने वाला है? इक्विटी रहने वाला है. इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस रहता है. You're gonna have preference share capital, you have debt. और डेट में लॉन्ग टर्म डेट रहता है, शॉर्ट टर्म डेट रहता है, और ऐसा आपका टोटल फाइनेंसिंग होता है. दिस इज अ टोटल कैपिटल दैट यू एम्प्लॉय इन द बिजनेस और टोटल कैपिटल दैट इज डिप्लॉयड इन द बिजनेस. डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई कांट हियर. तो ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट का प्रोपोर्शन कितना है? डेट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल. सो टोटल डेट इज व्हाट आई एम टेकिंग, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट. There is quasi debt in case you people have started doing Ind AS audits. Or you people have done it in the even intermediate, just the word I am using, fancy word. Finance lease obligations. As simple as that. If you remember AS 19 that you did in intermediate, there is a finance lease. Finance lease के अंदर जो amount payable होता है, it is what? It's like a debt. So you must understand when you evaluate a financial statement, don't take a debt literally as bank loan or debentures or commercial paper. Commercial paper याद होना चाहिए. So take debt. When I say debt, it includes the quasi items like this also. Laptop office में रख, charging का, और केला भी रहेगा, वो भी ला के रख. So debt is a total debt divided by what? Total capital employed. So debt के अंदर long term, short term plus such instruments like finance lease obligation or anything else which has a characteristics of debt. There are a lot of hybrids. I don't know whether you have split hybrid into equity and debt in articleship. You got anyone has got exposure on hybrids under Ind AS or IFRS, whatever you want to say? Hybrid instruments which have features of both. So hybrid instruments are there. There are a lot of hybrid instruments that you will encounter when you go to the finance world. फिर उनको आपको split करना होता है. There is a methodology for it. So that debt component of a hybrid is also to be taken in a numerator. ये जो है, ये आंसर मैंने जो लिखा है वो अपना टिपिकल नॉन प्रिस्क्राइब कंपनी के लिए. बट प्रिस्क्राइब कंपनी जो है, लार्ज कंपनी जो है, उनको इंड एस कंप्लाई करना होता है. इंड एस के अंदर आपको देयर आर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच यू नीड टू बाइफरकेट. सो टोटल डेट ले लो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लस समथिंग व्हिच इज नॉट एक्चुअली डेट बट इट इज लाइक अ डेट, फाइनेंस लीज divided by total capital employed. So this is proportion of debt to the total. Then debt to equity ratio, also known as financial leverage. याद है क्या? Leverage is taking advantage of something. But here this leverage word जो था वो दो तरीके से यूज होता है. One is with reference to income statement and one is with reference to capital structure. This is nothing but leverage with reference to capital structure. ये याद रखना. इससे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में मैं गियर्ड बीटा एंड अनगियर्ड बीटा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा. बीटा विथ गियरिंग, बीटा विदाउट गियरिंग. आपने इंटर में इसका छोटा सा झलक देखा था सिर्फ, अगर आपको याद होगा तो मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच था, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज थे. उसमें there was a thesis whether companies, Modigliani Miller argued that a capital structure was irrelevant. So उन्होंने आर्बिट्राज का उनका खुद का कॉन्सेप्ट दिया था. वो कॉन्सेप्ट भी हमें है यहाँ पर. प्लस ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोना टॉक अबाउट गियर्ड एंड
ungeared beta. Geared company means what? A company which uses a debt. Ungeared is company which doesn't have the debt free company. तो बहुत बार क्या होता है, आप अनलिस्टेड कंपनी का वैल्यूएशन करते हो. अब अनलिस्टेड कंपनी का जब वैल्यूएशन करोगे तो उसका तो बेटा निकल ही नहीं सकता, उसकी शादी हुई नहीं तो बेटा कहां से आएगा? जोक था ये. अनलिस्टेड कंपनी का बेटा कहां से निकालोगे? comes the concept of proxy beta. For example, I want to do the valuation of Byju's. Byju's is an unlisted one. तो Byju's का valuation कैसे करूंगा मैं? So I need to find out some edutech company which is listed. इंडिया में तो I don't know any edutech company of that size and scale which is listed. मतलब ऐसा ट्री हाउस भी listed है. सो ऐसे फालतू फालतू बहुत सारे रहेंगे, बट रीजनेबल लेवल का कंपनी आपको मिलना चाहिए. ठीक है, यहां पर नहीं है तो ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में होगा. तो यू फाइंड आउट बाइजूस का मुझे वैल्यूएशन करना है. आई हैव टू गिव अ रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ बाइजूस. हाउ डू आई एस्टिमेट अ बीटा ऑफ बाइजूस? आई विल टेक आउट द बीटा ऑफ सम लिस्टेड peer, मे बी इन इंडिया और मे बी अब्रॉड समवेयर. लिस्टेड कंपनी रहेगा कहीं ना कहीं, तो उसका बीटा मैं कैलकुलेट करूंगा. लेकिन उस कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा और बाइजूस का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर समझते? थैंक यू. तो मैच होगा ऐसे जरूरी नहीं ना. वो जो दूसरा कंपनी है उसमें 30% डेट है, 70% इक्विटी है. बाइजूस के अंदर डेट है, वेंचर डेट रहता है. मैंने कल बोला था, पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने. कल मैंने बहुत सारी चीजें बोली थी, एक भी चीज तुमने पढ़ी नहीं होगी घर पे जाके. वेंचर कैपिटल डेट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. आज का होमवर्क लिखो, सीसीपी, कंपल्सरली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, सीसीपीएस पढ़ लेना. सीसीपीएस, एक रुपए के सीसीपीएस होते हैं स्टार्टअप्स के अंदर. ऑफिस में एमसीए के वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन होगा या दूसरा कोई सब्सक्रिप्शन होगा तो वहां से डाउनलोड करो. सीसीपीएस के टर्म्स एंड कंडीशंस देखो कोई स्टार्टअप के. पिकअप स्टार्टअप, ट्राई टू फाइंड आउट सीसीपीएस इशूड बाय दैट, और गो टू वीसी सर्कल और गो टू INC 42 एंड ट्राई टू फाइंड आउट सीसीपीएस इंस्ट्रूमेंट. समझ लो, ये कोर्स में आने के लिए 50 साल लगेंगे शायद. हॉट इंस्ट्रूमेंट है, आज नहीं पिछले कई सालों से. स्टार्टअप्स के फाइनेंसिंग में जो इंस्ट्रूमेंट, वेंचर्स फंड आते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं, वो सीसीपीएस के फॉर्म में आते हैं पैसा. तो सीसीपीएस क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स होता है. बोलो या तुम रिसर्च करोगे? हाँ, पढ़ेंगे. तो कंपल्सरली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है. देयर आर सर्टेन माइलस्टोन्स व्हिच आर सेट अप बाय द फाइनेंसर. वेंचर कैपिटल फंड होता है, वो बोलता है कि ये माइलस्टोन तुम अचीव करोगे तो उस माइलस्टोन्स के हिसाब से कन्वर्जन होते रहेगा ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी, एंड दैट इज हाउ दे गेट अ इक्विटी. तो वैल्यूएशन जब करना होता है तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है. तो बाइजूस के केस में बहुत सारा सीसीपीएस है, वेंचर कैपिटल डेट है. तो मैंने बाइजूस का लिस्टेड पीयर ढूंढ लिया. मैंने लेट्स से चाइना के अंदर लिस्टेड है कोई, चाइना की लगी पड़ी है अभी. चाइना के अंदर बहुत सारे टेक कंपनीज थे उनकी. आई होप यू नो, चाइनीज गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी हैज टेकन अ ह्यूज बिटिंग डाउन देयर. तो आई फाइंड आउट अदर कंपनीज ऑफ विच आर लाइक बाइजूस इन यूके. लाइक टोनी ब्लेयर का उसका बच्चा है, उसका एक कंपनी है विच इज गुड वन इफ यू वांट टू डू इंटर्नशिप आफ्टर कंप्लीटिंग अ सीए. I just forgot the name of this entity. Europe, they're spending now in US. If you want number one in terms, टोनी ब्लेयर का बच्चा, टोनी ब्लेयर वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. उसका बच्चा है, उसने इंटर्नशिप्स के लिए बहुत अच्छा सा स्टार्टअप चालू किया. मतलब इट्स नाउ $1 billion कंपनी. जस्ट रिसेंटली बिकम $1 billion. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट. टोनी ब्लेयर सन्स यूनिकॉर्न कंपनी. चेक करना आप. सीए बनने के बाद अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमबीए वगैरह करना है और इंटर्नशिप्स उसके लिए कुछ ऑन रिकॉर्ड चाहिए, you can get those internships. Anyone can get the name? हाँ, करेक्ट, मल्टीवर्स नाम याद रखना. अगर आपको फॉरेन में जाने का मतलब सीखने के लिए, घूमने के लिए नहीं है ये मेटावर्स नहीं है या और दूसरा कुछ. तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था? बाइजूस का मैंने कंपेरेबल पीयर ढूंढा, उसमें 30:70 डेट इज टू इक्विटी है. बाइजूस में मैं बोलता हूं 40 डेट है, 60 इक्विटी है. ऐसे फेक राउंड नंबर करेक्ट नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंपनी का जो बीटा है वो गियर्ड है ऑलरेडी, बट उसका गियरिंग का रेशो अलग है. बाइजूस का गियरिंग का रेशो अलग है. तो जो कंपेरेबल कंपनी है उसका गियर्ड बीटा से उसका अनगियर्ड बीटा निकालना पड़ेगा.
और वो अनगियर्ड बीटा को यूज करके बायजूस का कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करके गियरिंग करना पड़ेगा। सिलेबस में है, मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कहां कहां लगने वाले हैं। तो उस टाइम पे आपको डेट इक्विटी रेशियो समझना पड़ेगा, उस कंपनी का क्या है, बायजूस का डेट इक्विटी रेशियो क्या है, उसका बीटा क्या है, और उस बीटा के हिसाब से हमें ये बीटा डिराइव करना पड़ेगा। बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन यू डू वैल्यूएशन यू मे नॉट फाइंड अ कंपेरेबल कंपनी। या आपने आईपीओ जब देखे होंगे, आईपीओ का जब वो रेगुलेटरी डिस्क्लोजर्स आता है तो वहां पर आपको कंपेरेबल कंपनीज फाइंड आउट करने होते हैं। कंपेरेबल कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपेरेबल कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है, उसका अर्निंग्स पर शेयर क्या है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, या रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या है। ओके, बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू have really bothered to go for additional regulatory information that is required to be disclosed under Schedule 3 from 1st of April 2021 and 2022 now for some companies? Schedule 3 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया है निर्मला मैडम ने। एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन के जो क्लॉजेस ऐड किए हैं और उसके अंदर जो बहुत सारे रेशियोज डिस्क्लोज करने हैं, कैलकुलेट किए क्या ऑडिट करते टाइम पे? लिखो आज का होमवर्क, शेड्यूल 3 एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट और रेशोज है, बहुत सारी चीजें यार वहां पर। कैपिटल के फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है, तुम्हारे लोन के बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है कि कैश अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन। एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन शेड्यूल 3, और ये सब चीजें अलग से नोट करके रखनी चाहिए लास्ट पेज पे, और टिक टिक करने का उसको घर पे जाके पढ़ने के बाद, नहीं तो जाए चलो टेक टेक टेक। सो एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में भी आपको ये रेशियोज जो है ना वो डिस्क्लोज करने हैं। देयर आर सर्टेन रेशियोज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज मैंडेटरीली। प्लस सबसे खतरनाक चीज, अगर उन रेशियोज में 25% से ज्यादा वेरिएशन आया तो आपको वेरिएशन के रीजंस भी एक्सप्लेन करने होते हैं। तुम्हारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आया होगा, तुम्हारे बिग फोर में जो भी नाम तुम बोलते होगे, तुम डॉक्यूमेंटेशन करते होगे, तो मतलब ऑडिट करने के पहले, ऑडिट खत्म होने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, वो सब पीर रिव्यू के लिए रहता है। अभी चलो आ जाइए, ऑडिट किया, अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है ला। डेट टू इक्विटी रेशियो उस टाइम पे हमें काम आएगा लिवर्ड टू अनलिवर्ड, या अनलिवर्ड टू लिवर्ड, या लिवर्ड टू लिवर्ड। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना है बहुत बार, एक कंपनी का डेटा लेके दूसरे कंपनी को हमें मूव ऑन करना है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। प्रॉक्सी वैल्यूएशन और रिलेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं इसको। दूसरे कंपनी का वैल्यूएशन देखो, उसके हिसाब से हम यहां पर करेंगे, उसके लिए डेट इक्विटी रेशियो काम में आएगा। फॉर्मूला तो मतलब बकवास है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, वो तो तुमको भी मालूम है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, आई हेट दिस बट आई हैव टू टीच। आईपैड कौन मैड, आईपैड भी बोल रहा है इतना मत सिखाओ इनको। कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसमें क्या होता है, इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर यू डोंट हैव जस्ट द डेट एज अ गियर्ड फंड्स, यू हैव हाइब्रिड प्रेफरेंस शेयर आल्सो। so it is debt plus preference share capital divided by what, equity. Debt equity ratio का sister है, nobody uses this ratio। क्यों? preference share capital ये useless लोगों के लिए ही उसको इक्विटी का स्टेटस दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आई होप यू नो अंडर IFRS दिस इज अ हाइब्रिड, उसको आपको डेट में क्लासिफाई करना है या इक्विटी में, या देयर इज अ डेट कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट। अगर आपने FR सीख लिया होगा तो आपने वो किया होगा, नहीं है तो जब FR सीखोगे तब ये बाइफर्केशन आपको आएगा, बाइफर्केशन ऑफ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट इनटू डेट कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट। नेक्स्ट, डेटर टर्नओवर रेशियोज, दीज आर बेसिकली यूजफुल फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगर आपको याद होगा तो, या आपने आर्टिकलशिप में CMA का रिपोर्टिंग किया होगा तो। हाउ मेनी आर डन रिपोर्टिंग ऑफ CMA फॉर एनी ऑफ द क्लाइंट? हाउ मेनी नो CMA? क्रेडिट मॉनिटरिंग एजेंसीज रिपोर्ट, लिखना, क्रेडिट मॉनिटरिंग एजेंसी। अगर आपके कोई क्लाइंट ने बैंक लोन उठाया है तो उसको रिपोर्ट, बैंक को रिपोर्टिंग करना होता है, CMA रिपोर्ट, उसका फॉर्मेट रहता है, टेम्पलेट्स रहते हैं उसके। तो जो भी CMA का टेम्पलेट तुम्हारे ऑफिस में है वो चेक करना आज, कोई ना कोई तो क्लाइंट रहेगा।
आईपीओ क्लाइंट्स के लिए भी होता है, बट वो डेट फंडिंग अगर है तो हमारे पास तो देयर इज अ मॉनिटरिंग. आईपीओ क्लाइंट के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट मॉनिटरिंग दैट यू हैव टू डू. यू विल हैव टू फाइंड आउट अ क्लाइंट हु हैज अ गुड डेट एंड फॉर हुम वो आपके पास काम होना चाहिए उसका, तभी मिलेगा. बट कोई ना कोई तो क्लाइंट का काम रहेगा ना ऑफिस में, क्रेडिट मॉनिटरिंग एजेंसी, तो तब जाके वर्किंग कैपिटल के नंबर्स बहुत काम में आते हैं. तो मुझे आई वॉन्ट टू नो नंबर ऑफ डेज फॉर विच डेटर्स आर आउटस्टैंडिंग. क्या आप मुझे चाहिए नंबर ऑफ डेज फॉर विच डेटर्स आर आउटस्टैंडिंग. तो पहले हम डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं. क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल. आपको याद होगा न्यूमरेटर इज अ फिगर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, क्रेडिट सेल्स इज फॉर अ ईयर, divided by, I cannot take a debtors at a particular point of time, I should take a average debtors. So that is why I had taken average debtors. Debtors को मैंने fancy language में बोला account receivable, and then average is opening plus closing upon 2. Then using this we calculate average collection period, which is 360 days divided by DTR. जो पीरियड होता है वो हमेशा 360 अपॉन टर्नओवर रेशियो रहता है. और डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली सेल्स, सेल्स पर डे. सेम वे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, वो आपको बताता है एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच क्रेडिटर्स आर आउटस्टैंडिंग. तो आपने जब क्वार्टरली इवैल्यूएशन किया होगा कोई कंपनी का, लिमिटेड रिव्यू जब किया होगा, तो रेशियोज पे ही काम करते हैं. तो यू टेक आउट क्वार्टर बाय क्वार्टर क्या चेंजेस है डेटर्स और क्रेडिटर्स में, अगर एक्सेप्शनल आया तो फिर इन्वेस्टिगेशन करो. तो बहुत सारी चीजें आपको समझ सकती हैं इनसे. इट गिव्स यू एवरेज पेमेंट पीरियड. देन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक. RMITR आ गया, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ई नहीं चाहिए, ITR, raw material inventory turnover ratio. Once you get it, you can get average time period for which raw material is held by you. How do you get it? 360 divided by what? RMITR. आपको पीरियड जब चाहिए होता है ना बच्चों, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो. तो वो कर लो आप, RMITR. फिनिश गुड्स के लिए जब करना है तो न्यूमरेटर में COGS लेना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कभी कभी क्वेश्चंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं देते, तो हम सेल्स लेते हैं न्यूमरेटर में, बट सेल्स इज रॉन्ग. यू शुड, बिकॉज इन्वेंट्री इज नॉट वैल्यूड एट अ सेलिंग प्राइस. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज बेसिकली रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट, बट उसके वर्जन्स है, 3 वर्जन्स है. ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन नेट एसेट्स, RONA. रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन नेट वर्थ. Equity is known as a net worth. Return on assets देखते हैं अभी. See, numerator and denominator must match with each other. पहले मैं क्या बात करूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेस. सो इफ my denominator is total capital employed, my numerator should be total profit for them. So average total capital, लॉन्ग टर्म नहीं, टोटल ले सकते हो, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो. Average total capital employed, short term या long term, whatever it may be, and numerator is operating profit. This is before tax, because EBIT जो होता है वो before tax होता है. तुम्हारा जो operating profit होता है बच्चों, उसमें से तुम क्या क्या करते हो? From operating profit you pay interest which goes to debt holders, you pay tax, then you pay preference dividend, and remaining amount is earnings available to equity shareholders, if you remember. So operating profit is the amount earned by the company for all investors put together. Denominator is amount given by all of them put together. Denominator is amount given by all of them put together. So numerator and denominator are matching with each other. ROC is pre-tax. So if you remember financial statements, EBIT less interest, ROC, EBIT less interest. Thereafter, you got earnings before
टैक्स नहीं बोलूंगा मैं यहां पर, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी हो सकता है. सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया मैंने. So therefore I have got earnings before tax less tax, and therefore net profit is what I have got. So sometimes you might have to do the working. You have to go from bottom to top. Examiner might not give you operating profit. You might have to work from bottom towards top. कैपिटल एम्प्लॉयड जो है लॉन्ग टर्म नहीं लेने का है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो. इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट भी ले लो, क्योंकि मैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहा हूं. टोटल कैपिटल आ गया आपका. बट देयर माइट बी सम कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन नॉन ऑपरेटिंग असेट्स और नॉन ट्रेड असेट्स. तो ये तुम्हारा टोटल कैपिटल है, उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस करो, लोन्स एंड एडवांसेस माइनस करो. क्यों? ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं बट दे आर नॉट जनरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये इंटर का काम है यार पूरा. न्यूमरेटर क्या था मेरा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ना. तो न्यूमरेटर इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. तो डिनोमिनेटर शुड बी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. इफ सम पार्ट ऑफ द कैपिटल इज एम्प्लॉयड इनटू non-trade investments or loans and advances that you could have given, which is not your core business, आपने क्या करना चाहिए? उस कैपिटल में से उसको हटा देना चाहिए, माइनस करना चाहिए. और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को भी माइनस करते हैं, बिकॉज दोज आर असेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन. असेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन डोंट गिव यू एनी रिटर्न, तो उनको मैंने माइनस कर लिया. सो CWIP डज नॉट रिजल्ट इनटू अर्निंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. So these items earn non-operating income, hence excluded. तो ROC क्या है? Return on capital employed. Please remember, ROCE does not depend on capital structure. तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. क्यों फर्क नहीं पड़ता यार? एक सिंपल लॉजिक लगाओ ना. आई स्टार्टेड अ होटल बिजनेस. आउट ऑफ let's say 1,000 crores that are required for that hotel business, I have raised 300 crore from equity and 700 by debt. उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों फर्क होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन ROCE and the size of capital. Capital structure is not size of the capital. Capital structure is proportion of the size of capital into debt and equity. Proportion has no bearing on ROC. Proportion कुछ भी हो, ROC अफेक्ट नहीं होता. ROC will be affected by size. क्यों? There are, please remember, you have to find a business which gets better with size. क्या बोला मैंने? Find a business which gets better with size. आप बोलेंगे मतलब कैसे ढूंढेंगे सर? Common sense. CAGR of my net profit or PAT should be higher than CAGR of sales. Sir, if what I used, तुम लोगों को मतलब लिखने का कोई मतलब सिखाया नहीं ना कुछ. बेशरम जैसे आके जब बैठ रहे, और ये तो घर वाले पे तो बोल ही नहीं सकते. You have to find CAGR of profit to be higher than the CAGR of sale. What does it mean? Benefit of fixed cost. अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट है और उसका सच में मुझे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कैसे चेक करूंगा मैं? मेरा प्रॉफिट जो है लॉन्ग रन में, नॉट इन अ पर्टिकुलर ईयर, लॉन्गर रन, माय प्रॉफिट मस्ट ग्रो एट अ रेट हायर देन सेल्स ग्रोथ. लेट मी टेक यू टू स्क्रीनर. स्क्रीनर पे लेट से मैं सर्च कर रहा हूं अवेन्यू सुपरमार्ट. सो अवेन्यू सुपरमार्ट इज ग्रोइंग. प्लीज रिमेंबर, फिक्स कॉस्ट एक है और दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होना चाहिए. एज योर साइज ग्रोज, योर वेरिएबल कॉस्ट शुड कम डाउन ऑन अ पर यूनिट बेसिस, क्योंकि आपका प्रोक्यूरमेंट में इफिशियंसी आना चाहिए, कॉस्ट का रैशनलाइजेशन होना चाहिए. तो देखो, डीमार्ट और अवेन्यू सुपरमार्ट ये P&L है. इसके नीचे दो चीजों का ग्रोथ मिलता है. लास्ट 10 years सेल्स ऑफ अवेन्यू सुपरमार्ट हैव ग्रोन एट 30% CAGR. दिख रहा है क्या? आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट CAGR. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + R raised to n.
10 साल पहले का सेल्स पीवी लिखो, आज का जो सेल्स है वो एफवी लिखो, 1 प्लस आर, आर मालूम नहीं है, रेज टू एन, एन विल बी 10, आर फाइंड आउट करो, आर विल बी CAGR. तो CAGR of your sales is 30%. Oh, look at it. Profits are growing at 38%. Why? Fixed cost. Fixed cost should give you the benefit, right? जैसे आपकी मेहनत रंग लाई, आप इंटर से फाइनल में आ गए, और मेहनत करके फाइनल से डिग्री लगा लो. तो वैसे ही मैंने अगर फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी. You have created certain capacities. DMart owns majority of their own stores. तो उन स्टोर्स का जो डेप्रिसिएशन है, जो फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट किया होगा या इक्विपमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो जो उनका फिक्स कॉस्ट है, उसका डेप्रिसिएशन, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस, वो उनका फिक्स कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी. तो वो कैपेसिटी से मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चेक करना चाहिए. इफ अ बिजनेस डजंट गेट अ बेटर विद साइज, डोंट मैरी टू दैट बिजनेस. I have learned it from making wonderful losses in Dilip Buildcon. Dilip Buildcon करके इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे मेकर. I got very much impressed by this company. Plus, it was associated with the ruling party of our country also. I said, और डबल बेनिफिट है. कंपनी इंडियाज लार्जेस्ट हाईवे मेकर, इफिशिएंट है, एक्सट्रीमली इफिशिएंट, बहुत इफिशिएंटली टाइम के पहले ये हाईवे बनाता है. लेकिन प्रॉब्लम यही है, इसको फिक्स कॉस्ट का एडवांटेज ही नहीं मिलता. So stock rallied initially, I made the profit, but thereafter didn't understood to exit and made wonderful losses. Profit का growth है ही नहीं क्योंकि लॉस में आ गया. 10 साल पहले प्रॉफिट में था, अभी लॉस में. So if you see net profits, there are wonderful losses. So profit growth is much lower than the growth of what? Sales. You have to find a business. So ROCE depends on size of the business. It doesn't depend on capital structure, the breakup of that size. For example, Avenue Supermart है, which is way bigger in the size. उसके comparison में there could be a V-Mart करके एक है, दूसरा एक, it's another listed player, V-Mart. I don't know how many of you know. एक उसका कंपनी का नाम V-Mart ही है मेरे हिसाब से. हाँ, V-Mart रिटेल, ये बहुत छोटा है in comparative terms. If you see in terms of size, this is just what 1666 crore company in comparison to DMart or Avenue Supermart. समझा क्या? So there are some businesses which get better with size. इसका ROC देखो कितना है, 5.57. Let me take you to Avenue Supermart. If I take you to Avenue Supermart, Avenue has ROC of 15%. That means it is getting better with size. Avenue, मतलब your procurement policies, your utilization of fixed costs or capacity, you should get better and better. So ROC will depend on the size of the business. कुछ businesses में size is an advantage, कुछ businesses में size is a disadvantage. Dilip Buildcon या L&T Constructions, इन बिजनेसेस में साइज कितना भी बड़ा होने दो, उसका ज्यादा एडवांटेज मिलता नहीं. इट इज अ डिसएडवांटेज एक्चुअली. इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बिजनेसेस होते हैं ना, साइज इज अ डिसएडवांटेज. क्यों? यू हैव टू कैरी दैट मच ऑफ मैन पावर, दैट मच ऑफ इक्विपमेंट विथ यू, एंड इफ यू डोंट विन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, योर एंटायर रिसोर्सेस रिमेन आइडल. सो जब लार्ज साइज का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होता है ना, दे हैव टू स्टार्ट बिडिंग फॉर एवरी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट कम्स अप. दे हैव टू स्टार्ट बिडिंग. तो आपको ये अक्ल होनी चाहिए कि कौन सा धंधा साइज के हिसाब से बेटर होता है और उस धंधे को पकड़ के रखने का. सो फाइंड आउट द बिजनेस विच गेट्स बेटर विथ साइज. साइज का एडवांटेज मिल सकता है क्या? कुछ बिजनेस में डिसएडवांटेज होता है. आईटी कंपनीज में साइज अगर बढ़ गया तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू सी द इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या हैप्पीएस्ट माइंड्स और LTTS करके कंपनी, लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, नाउ दे आर गेटिंग मर्ज विद द Mindtree. The reason why LTTS and Mindtree are getting merged is that they want to get bigger and bigger in terms of size. IT companies में size helps. Size does help in winning bigger contracts, in allocating resources from here to there.
इट डज हेल्प। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। फाइनल के अंदर ये कैलकुलेशन तो यार सॉफ्टवेयर भी करेगा, तुम भी करोगे यार, तुमको भी आएगा कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन से आगे जाके इनसाइट्स ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। प्लस दूसरा चीज अगर आपको याद होगा, आरओसी का फॉर्मूला क्या लिखा तुमने? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज। वो ठीक है, एवरेज ही लोगे ना आप। आपको अगर याद होगा तो इसी फॉर्मूला को मैं क्या करूंगा, दो तरीके से लिखूंगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स एंड सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ याद आ गया क्या? 2 पॉइंट मॉडल बोलते थे इसको। ईबीआईटी अपॉन सेल्स इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्या बोला मैंने? इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कुछ अगर आपको याद होगा तो इंटरमीडिएट में आपने इसको बोला होगा मार्जिन गेम। बिजनेस में 2 गेम्स आपको खेलने पड़ते हैं, एक है मार्जिन और दूसरा है वॉल्यूम गेम। मार्जिन गेम एंड अ वॉल्यूम गेम। मार्जिन गेम टेल्स यू व्हाट कि 100 रुपए का माल अगर मैंने बेचा तो 100 रुपए में से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, दैट इज अ मार्जिन गेम। और दूसरा वॉल्यूम गेम, पर रुपी ऑफ कैपिटल हाउ मच सेल्स डू आई जनरेट, दैट इज वॉल्यूम। तो आपको दोनों फ्रंट्स पे अच्छा काम करना होता है। यू हैव टू कीप ऑन इंप्रूविंग योर टर्नओवर रेशियो एंड कीप ऑन इंप्रूविंग योर मार्जिन्स। अब कुछ बिजनेसेस होता है जहां पे हाई मार्जिन्स रहता है, लो टर्नओवर रेशियो रहता है। कुछ बिजनेस होता है जिसमें मार्जिन कुड बी वेरी लो बट अ वेरी हाई टर्नओवर रेशियो, डिपेंड्स। यू हैव टू फाइंड आउट, you to find out the strategy of the management, whether they are looking for expanding volumes or whether they are looking for expanding margins, and understand on the basis of it. ROC after tax, EBIT वो same ROC before tax जो था ना, into 1 minus t करना है। When you do into 1 minus t, you get ROCE after tax. Return on equity, return on equity क्या होगा रे? डिनोमिनेटर चेंज होगा और उसकी वजह से न्यूमरेटर चेंज होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने क्या किया था? टोटल कैपिटल आई टुक इन डिनोमिनेटर, सिंस आई टुक अ टोटल कैपिटल इन डिनोमिनेटर, आई टुक ईबीआईटी इन न्यूमरेटर। नाउ हियर आई एम टेकिंग रिटर्न ऑन नेट वर्थ ऑब्लिक इक्विटी, सो इक्विटी इज डिनोमिनेटर। अगर इक्विटी डिनोमिनेटर में है तो ईएस शुड बी देयर इन न्यूमरेटर। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी shareholder, this is always after tax, ROE. Logically, listen to this carefully. If your ROCE is greater than rate of interest and you have data, you are earning more than the rate of interest. Rate of interest on your borrowings is 8.5%, assume for example. And you are earning at the rate of 17%, almost double. कुछ समझा नहीं? तुमने जो फंड्स बोरो किए वो क्या रेट पे बोरो किए? 8.5, और तुम कमा कितना रहे हो? 17। ये जो एक्सेस है, दिस एक्सेस बूस्ट्स ROE बट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। इस कॉन्सेप्ट को तुमने बोला था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कुछ याद होगा तो you could increase your ROE by using debt in your capital structure. But remember, you use debt, your ROE can increase. ROE is a metric of profitability. But you should look not just at the profit, you should look at wealth. Wealth is denoted by price of a share. Price of a share is not going to be affected by just the profit. It is also going to be affected by risk involved. क्योंकि जब आप डेट यूज करोगे तो आपका आरओई बढ़ सकता है। डेट यूज करोगे तो आरओई बढ़ सकता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ता है। तो यू आर इन अ कॉन्यूंड्रम, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन। आप दुविधा में हो। खुश कि भाई ऑफिस में जाने के बाद इंस्टाग्राम देखे या सर ने जो चीजें बोली है वो देखे।
या ऑफिस में जाने के बाद स्नैपचैट करे, या ये जो चीजें पढ़ने को बोली है, दुविधा में हो आप, ऑफिस में जाने के बाद क्या करें, और वो दुविधा में आपका दिन चला जाता है। सो वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यहां पर। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि डेट जब आपने यूज किया, डेट कैन इंक्रीज रिटर्न ऑन नेटवर्थ इफ ROCE is greater than the rate of interest. But remember, at the same time, debt can increase the risk and the price inverse relationship, ROE and the price positive relationship. Then that is where your judgment is going to come into picture कि भाई ये डेट जो है, डेट इज गुड अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, अल्कोहल इज गुड अप टू अ पर्टिकुलर लेवल इफ यू आर इन हिमालयस. So you go to offsite party in Sarasbag of your office and you try enjoying alcohol there. There is no temperature situation like that कि वहां पर जाके तुमने अल्कोहल यूज करना चाहिए. समझे? So conflict. So EAES, debt is good but up to a particular level. What is that level? कॉस्ट नहीं हो सकता. इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा है रिसेंट एग्जाम्स में, करेंगे अब. तो डेट कितना यूज करना चाहिए उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखना, इनका लिंकिंग आएगा. रिटर्न ऑन इक्विटी. तीसरा है रिटर्न ऑन टोटल असेट्स विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. और मैंने जो ऊपर लिखा था डुपॉन्ट, वो ब्रेकअप मैंने लिखा है. डुपॉन्ट इज द नेम ऑफ द कंपनी, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट. उन्होंने उनके इंटरनल फ्रेमवर्क में ROC को और ROE को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया था. रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग डुपॉन्ट. रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या कह रहे तुमने? अरे अभी कमीनो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, EAS डिवाइडेड बाय व्हाट? अमाउंट ऑफ इक्विटी. EAES डिवाइडेड बाय व्हाट? अमाउंट ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट व्हाट? डुपॉन्ट. सॉरी, ROE. अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन. जनरली EAES इज इक्वल टू पैट. प्रेफरेंसेस रहेगा नहीं. पैट अपॉन इक्विटी इज ROE, है ना? अरे समझा गया. अब इसी चीज को मैं क्या करता हूं, पैट अपॉन सेल्स करता हूं पहले. पैट अपॉन सेल्स मतलब क्या हो गया तुम्हारा? नेट प्रॉफिट मार्जिन नीचे लिखा है वो. असेट टर्नओवर, इट इज सेल्स जनरेटेड पर रूपी ऑफ असेट, टोटल असेट ले लो, इनटू leverage element. Now this is beauty. Asset upon equity. What is asset upon equity? Out of your total assets, how much assets are financed by equity? That indicates leverage. Normally, if your assets are more than the equity, that means you have funded assets through debt. Answer. Assets upon equity, if this ratio is bigger than 1, what does it mean? You finance your assets out of debt. तो बेसिकली क्या समझ रहा है तुमको? ROE में 3 गेम्स है. मार्जिन गेम. ROE के लिए कितने गेम्स है बच्चों? अरे रिस्पॉन्स यार. मार्जिन गेम, फिर वॉल्यूम गेम. असेट टर्नओवर इज अ वॉल्यूम गेम. और तीसरा है लिवरेज गेम. ये 3 गेम तुमको खेलना है, पबजी नहीं खेलना है. ROE के लिए 3 गेम्स है. ROCE के लिए 2 ही गेम थे. ROCE के लिए मार्जिन गेम है और वॉल्यूम गेम है. बट बच्चों मार्जिन अलग है प्लीज. ROE के लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन लगता है, ROCE के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगता है. अगर आपको, तुम लोगों ने कुछ आर्टिकल में एनालिटिकल रेशियोज वगैरह कुछ किए नहीं करे? रेशियोज का कंप्यूटेशन नहीं किया? सिर्फ ट्रायल बैलेंस देख के सर हाँ हमने वो टोटलिंग कास्टिंग विस्टिंग किया, उसका पोस्टिंग देखा हमने. वो आगे जाके रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं. दैट इज व्हाई निर्मला मैडम हैज इंट्रोड्यूस दिस रेशियोज मैंडेटरीली. ये रेशियोज मैंडेटरी आ चुके हैं. आई होप यू नो. एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन शेड्यूल 3 अमेंडमेंट इज देयर फ्रॉम 1st of April 2021. पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने. और ये रेशियोज, यू आर नॉट जस्ट सपोज टू एक्सप्लेन द रेशियो, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन कैलकुलेशन, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन वेरिएंस
of more than 25% in the ratio. This is very important change that India has done. क्यों? क्योंकि अगर आप स्क्रीनर पे जाओ, तिजोरी पे जाओ, टिकर टेप पे जाओ या और कोई टर्मिनल पे जाओ, ब्लूमबर्ग टर्मिनल या कहीं पे जाओ, आपको हर एक कंपनी का आरओसी, आरओई अलग अलग दिखेगा. क्यों? द वे दे यूज द डेटा that is generated by XBRL file. I hope you have at least generated XBRL in article ship. Schema. How many have worked on the schema and generated XBRL file in the article ship of the financial statements? कोई तो यूटिलिटी होगा तुम्हारे ऑफिस में. क्या झाड़ू लगाने जाते हो ऑफिस में? XBRL यूटिलिटी शेड्यूल 3 तुमने बनाया, एक्सेल में फाइल बनाया होगा या तुम्हारा जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें बनाया होगा. उसके बाद एमसीए के वेबसाइट पे जो फाइल अपलोड होता है उसका कन्वर्जन देखा है क्या तुमने? लिखो होमवर्क में XBRL यूटिलिटी. तुम्हारे ऑफिस में जो भी काम आउटसोर्स किया होगा तुम्हारे ऑफिस के अंदर करते हैं, मालूम नहीं, डिपेंडिंग ऑन टेक कैपेबिलिटी ऑफ योर ऑफिस. उनको पूछ के देखना कि भाई जो फाइल अपलोड होता है या क्लाइंट करता होगा क्लाइंट के एंड पे, डिपेंड्स व्हाटएवर. कुछ अभी हर एक चीज का रूल है, लेकिन तुमको वो XBRL फाइल भी चेक करना होता है. तो वो जो XBRL फाइल होता है, ये स्क्रीनर वगैरह डेटा लाते कहां से? वो XBRL फाइल्स को इंपोर्ट करके, XBRL फाइल जो होता है वो इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं. लेकिन वो जो स्कीमा होता है उसके लिए, वो स्कीमा पढ़ो. XBRL इंटरनेशनल का वेबसाइट जाकर देखो. ICI इज द मेन पार्टनर फॉर इंडिया. XBRL इंटरनेशनल, ICI ने कंपनी फॉर्म किया उसके लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है. तो उसका स्कीमा आता है उनके वेबसाइट पे. इंडेस का फिर स्कीमा देखो, इंडेस का स्कीमा अलग है. फिर NBFC का एक आधा क्लाइंट है तुम्हारे पास, तो वो देखो उसके केस में XBRL ठीक से नहीं वर्क होता है तो वो पोस्टपोन कर रहे हैं. आई डोंट नो वेदर दे हैव इंप्लीमेंटेड XBRL फॉर NBFCs और नॉट. दैट पोस्टपोन्ड इट फॉर वेरी लॉन्ग, क्योंकि वो स्कीमा ही क्रिएट नहीं हुआ इनसे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं बैंकिंग एंड NBFCs के, दे आर नॉट इन द सेम फॉर्मेट एज शेड्यूल 3 ना. हाँ, GST के इधर भी करते होगे तुम कन्वर्जन यूटिलिटी, बट उसमें XBRL नहीं रहता मेरे हिसाब से. GST स्टिल ऑन XML टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन XBRL एंड XML. हमको टैक्स आता नहीं है लेकिन बाकी चीजें हमारी बहुत अच्छी है. XBRL is much more sophisticated. XML में उतना नहीं है. XML is quite easy. XML you can create from HTML file also. XBRL उतना आसान नहीं है. So there is a tagging. तुम्हारे जो notes to accounts होते हैं, schedules होते हैं, उनका tagging करना होता है, स्कीमा होता है, सॉफ्टवेयर करता है वो सब कुछ. बट एक बार आपने देखना चाहिए आर्टिकलशिप में. एक कंपनी का काम करके देखो, कन्वर्जन करके देखो फाइल क्या आता है, या एमसी के वेबसाइट पे जाके यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके 100 रुपया 400 रुपया देके वो डेटा कोई तो कंपनी का डाउनलोड कर लो आप. XBRL का फाइल, मतलब तुमने जो काम किया है वो अपलोड होने के बाद उधर क्या क्या दिखता है, पूरा एंड टू एंड प्रोसेस आपने ऑब्जर्व करना चाहिए. बिकॉज वो प्रोसेस के हिसाब से ब्लूमबर्ग या कोई भी एंटिटी हो, डेटा एनालिटिक्स कहां से करेंगे यार? जो डेटा पब्लिक लेवल है वो वहां से करेंगे ना. क्या उनको क्या प्राइवेट डेटा मिलेगा क्या कहीं से? बट वो एक बार वो डेटा वहां पर गया और मैंने उसको पुल कर लिया, देन इट कम्स अप, हाउ डू आई यूज इट. बाय द टाइम यू पीपल, मतलब इन नेक्स्ट 1 or 2 years, my gut feeling is once the ONDC is implemented in India properly, we'll have lot of open source tax softwares. How many know ONDC for that matter? देखो ONDC is one of the great project. If it is implemented, this will radically change the SME sector of our country. Amazon वगैरह की तो लग सकती है इसकी वजह से. पढ़ लेना, नंदन नीलकनी is heading that particular project. जाने दो, ये सिलेबस में नहीं है, स्ट्रेस मत लेना. स्ट्रेस आ रहा होगा तो तुम कुछ नहीं, तुम अपना डुपॉन्ट मॉडल ROE इज इक्वल टू मार्जिन गेम इंटू वॉल्यूम गेम इंटू लिवरेज गेम, ऐसा करके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ना तो भी काफी है. तुम CA बन जाएगा, IAS से कंपीट नहीं कर पाएगा. रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू मार्जिन गेम इंटू वॉल्यूम गेम इंटू व्हाट? लिवरेज गेम. तो आपको यह समझना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी आता कहां से.
net profit margin plus the volume that I generate plus the leverage that I create. But remember, by creating a leverage, you can create ROE. You can create ROE, but वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा कि नहीं होगा वो यहां से नहीं बोल सकते. उसके लिए आपको जजमेंट लगेगा कि जो रिस्क हम ऐड कर रहे हैं बाय एडिंग अ लिवरेज, यू ऐड अ रिस्क. वो रिस्क जो ऐड कर रहे हैं उससे प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा. इट्स अ मैटर ऑफ जजमेंट. देयर इज नो फॉर्मूला फॉर इट. लाइफ में हर चीज फॉर्मूला से नहीं होती है, कुछ चीजों में आपको जजमेंट लगता है. सो आरओसी हो गया, डू पॉइंट मॉडल हो गया. यील्ड रेशियोज जो भाई साहब ने कल माती खाई थी ना, वो ये थी. यील्ड इज विथ रेफरेंस टू मार्केट प्राइस. रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाज विथ रेफरेंस टू बुक वैल्यू. So dividend yield is dividend per share divided by share price. Earnings yield is EPS upon share price. वहां पर ही क्या लिख के रखोगे तुम? ROE is equal to earnings yield into कौन सा रेशो? Price to book value ratio. These are some of the important ratios for the purpose of valuation. Broad basis पे PB, PE and dividend yield. तो रिटर्न जो होता है that investor earns is from change of dividend plus change of dividend per share plus change in price of share divided by price at the beginning. कोई भी ईयर का रिटर्न निकालना है, ये पोर्टफोलियो में हमें बहुत काम का आने वाला है चीज. रिटर्न ऑफ अ स्टॉक फ्रॉम अ पर्टिकुलर ईयर इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इफ एनी प्लस ऑब्लिक माइनस चेंज इन द प्राइस ऑफ अ शेयर divided by opening price. Can this return be negative? Yes. Can this be positive? Yes. तो वहां से हम ईयर बाय ईयर रिटर्न निकालेंगे या मंथली रिटर्न निकालेंगे, जो भी निकालना है तुमको, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, वोलेटिलिटी. और वो वोलेटिलिटी हम यूज करेंगे डेरिवेटिव्स चैप्टर में फॉर द पर्पज ऑफ valuation of a call option under European style, not American style. आएगा ये. पर पहले रिटर्न, फिर रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन. तो एक स्टॉक का हो गया, फिर दूसरा स्टॉक, तीसरा स्टॉक. सिलेबस 3 स्टॉक पे रुकेगा. सिलेबस 3 के आगे जाता ही नहीं, उसका कैपेसिटी उधर खत्म होता है. अगर पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करने का, तुम सीए बनेगा तो भी तुमको नहीं समझेगा. मतलब हम करेंगे क्योंकि अपने पास एक्सेल है. एक्सेल में तुम कुछ भी कर सकता है, बट सिलेबस में जो फॉर्मूला है जो तुमको करना पड़ेगा वो 3 स्टॉक्स. तो पहले 2 स्टॉक्स का, सिंगल स्टॉक के साथ पोर्टफोलियो हो नहीं सकता. तो 2 स्टॉक्स एंड व्हाट 3 स्टॉक्स. तो पोर्टफोलियो का जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न्स का होता है. तो रिटर्न ऐसे आता है, वो रिटर्न का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा. तो मैं आपको सिर्फ लिंकिंग बता रहा हूं, तो आप बोलोगे सर ये कुछ बहुत सारी चीजें अलग लग रही है. हाँ, इट्स ओके. ये आगे जाके सब कुछ डिटेल मैनुअल, ये ट्रेलर चैप्टर है. प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय व्हाट, बुक वैल्यू पर शेयर. समझाओ तुमको. बुक वैल्यू इज अमाउंट ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. पी रेशियो इज प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर. देन द कवरेज रेशियोज व्हिच आर यूज्ड फॉर indicating ability of company to service the debt. Whenever you raise a debt, you have obligation to pay interest and to repay the principal. Similarly, whenever you have preference shares, you still have obligation of preference dividend and you have obligation for what? Repayment of preference share capital. तो वो हम चेक करते हैं. सबसे अच्छा रेशो जो होता है डेट सर्विस कवरेज रेशो, क्योंकि यहां पर हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को कवर करते हैं. तो न्यूमरेटरीज, ये कवरेज रेशियोज में एक ही चीज याद रखना है, अवेलेबल अपॉन पेएबल. अवेलेबल अपॉन व्हाट, पेएबल. कितना पैसा अवेलेबल है टू सर्विस द डेट डिवाइडेड बाय कितना पैसा पेएबल है. एज सिंपल एज दैट. अर्निंग्स अवेलेबल फॉर सर्विसिंग डेट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट. उस साल के अंदर कितना ड्यू है. याद रखना, इसका रिलेवेंस आएगा जब हम फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे. तब फ्री कैश फ्लोज के टाइम पे
डेट का रीपेमेंट कितना होने वाला है वो कंसिडर करना होता है, कैपेक्स कितना होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कंसिडर करना पड़ेगा. सो अर्निंग्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. तो अर्निंग्स अवेलेबल कैसे आएंगे, नेट प्रॉफिट ले लो तुम, रिवर्स वर्किंग करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड नॉन कैश आइटम्स, क्योंकि उतना कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं है तो पैसा अवेलेबल है. ऐड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ असेट वगैरह, नॉन कैश आइटम्स ऐड कर लो. एड बैक इंटरेस्ट, बोलेंगे क्यों एड बैक इंटरेस्ट, आई वॉन्ट टू नो हाउ मच इज अवेलेबल टू पे द इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट शुड नॉट बी डिडक्टेड ना, इंटरेस्ट शुड बी एडेड back. Principal is not added back because principal is never debited to P&L. What you debit to P&L? Interest. Do you debit principal to P&L? No. So interest हम add back करेंगे. So that is this. Interest coverage ratio which tells us EBIT divided by what? Interest. EBIT divided by interest. क्यों, ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये टोटल बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट की. अरे क्लियर. तो दिस कैप्सूल ऑन रेशियोज इज डन. एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क. आई विल टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस कैप्सूल नाउ, एग्जाम क्वेश्चन, ताकि वो आप बैटरी रहने तो क्या है, सुनते सुनते मरे. डाउट ऑनलाइन भी नहीं डाउट, किसी को डाउट? सर वेयर फ्रॉम वी कैन कलेक्ट द नोट्स? You go to the Amazon office, you will get the notes there. Obviously, you have to come to the Ekatom office and take a notes here. फाइनल में आके ये डाउट, ये नोट्स है तो आप ऑफिस में आके कलेक्ट कर सकते हो कभी भी, 10 से 6 कभी भी आना, लंच के ब्रेक में आके कलेक्ट करना, प्रेस्टीज पॉइंट के ऑफिस में. और किसी को डाउट?